انہیں بڑی عزت کے ساتھ عظمت کے ساتھ فرشتے آہو بھگت کرتے ہوئے استقبال کریں گے ان کو بلائیں گے کہ آ جاؤ جنت میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور جو جہنمی ہوں گے انہیں بری حالت میں لے جایا گا. وہ جانا نہیں چاہیں گے. ان کے چہرے پہ مارا جائے گا, ان کے پیٹھ پر مارا جائے گا, اور ان کی داڑیاں پکڑ کر, ان کے سر کے بال پکڑ کر انہیں کھینچ کر لے جایا جائے گا. تو یہ بتائیے جانا تو آخرت میں ہے, عزت سے جانا بہتر ہے یا بے عزتی سے جانا بہتر ہے؟ اس کو طے کرنا ہمارے ہاتھ میں. اچھی بات. وہاں پر پروردگار عالم بے شمار نعمتیں ہمیں دے گا. اس کی بشارتیں حدیثوں میں اور آیتوں میں دی گئی ہیں کہ نہریں بہیں گی, طرح طرح کے پھل ہوں گے, حور ہوں گے, غلمان ہوں گے, اور ایک عجب قسم کی لذت ملے گی. آدمی کے بے اطمینانی نہیں ہوگی, کسی چیز کا رنج نہیں ہوگا, کسی چیز کا غم نہیں ہوگا, کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی, نا امیدی نہیں ہوگی. ہمیشہ انسان خوشحال رہے گا, اور ایک قرب الہی کی جو لذت ملے گی وہ تمام نعمتوں کے اوپر بڑھا دے گی. وہ جو پیاس ہے انسان کو, وہ پیاس نہ مال سے بجھی, نہ اولاد سے بجھی, نہ بیویوں سے بجھی, تو پھر وہ پیاس کس سے بجھے گی؟ وہ پیاس ہے یاد خدا سے, اور وہ یاد خدا مکمل معرفت کے ساتھ ہمیں وہاں نصیب ہوگی. جیسے ہمارے درجے ہوں گے ویسے ہمیں مرتبہ ملے گا, ویسے ہمیں معنوی اور روحانی لذت ملے گی. اس لذت کا نام جنت ہے, جس کو ہماری شعراء اور ہم لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم کو کنویں نجف کافی ہے, جنت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنت کیا چیز ہے اگر کربلا کی خاک بھی مل جائے تمہیں؟ ارے صاحب, جو نتیجے کے طور پر, پاداش کے طور پر, انعام کے طور پر انبیاء افضل المخلوقات کو دیا جائے گا, وہ کم تر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی اہمیت کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ جو اپنے انہی سب چیزوں کو کم رنگ کرنے کی وجہ سے ہم نے جو اپنی اولویت ہماری ختم ہو گئی کہ کس کو آگے رکھنا چاہیے. اگر جنت کی حسرت ہوتی, جنت کی خواہش ہوتی, جنت کی تمنا ہوتی تو ایسی باتیں کرتے ہیں, تیاری بھی اس کے لیے ویسی کرتے. بس پتہ یہ چلا کہ انسان جنت اور جہنم جو بناتا ہے وہ اپنے عمل سے بناتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی, جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ انسان جنتی ہے نہ دوزخی ہے. اور جو کچھ ہے جو اپنے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں. صلوات پڑھیں محمد وعلى. اب اس سے زیادہ خلاصہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اب بحث یہاں پر آ گئی کہ انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ انسان کا مستقبل, انسان کا فیوچر آخرت ہے, اور اس کا مقصد اللہ سے قریب ہونا ہے. اور انسان کی یہ ابدی زندگی, یہ جاویدانی زندگی, یہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی بنیاد اس کے اعمال پر. ایک آخرت ہے, آخرت کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ انسان کے اعمال کے اوپر. اللہ سے قریب ہونا ہے تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے. ابدی نعمتیں حاصل کرنا ہے تو اعمال کی بنیاد پہ حاصل کرنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز جو انسان کی ترقی کا ضامن ہے وہ اس کے اعمال ہے, جس کو ہم شفاعت اور توکل کے نام پر کمرنگ کرتے ہیں. وہ شفاعت اور توکل کا حقدار بھی وہی انسان بنتا ہے جو عمل کرتا ہے. یعنی اہل بیت کے پاس کیا محور ہے کسی کی شفاعت کرنے کا؟ بے عمل کی شفاعت کریں گے, بے ایمان کی شفاعت کریں گے, یا باعمل کی شفاعت کریں گے؟ ان کے پاس کیا معیار ہے؟ تو شفاعت کے حصول کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے. عمل میں کوتاہی ہو جائے تو یہ شفاعت اس کو پورا کرتی ہے. جو سرے سے بے عمل ہے اس کو جو اپنے اہل بیت علیہ السلام کیا مدد کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کا مقصد آخرت ہے
आखिरत अमल की बुनियाद पर है। ये अमल कहाँ पर अंजाम देना है? दुनिया में अंजाम देना है। तो पता ये चला कि दुनिया में हम अपनी आखिरत बनाते हैं, दुनिया में हम अपनी आखिरत बनाते हैं। तो पता ये चला कि इस दुनिया में हमको आखिरत के रास्ते पर चलने के लिए एक ऐसे रास्ते पर कदम रखना चाहिए जो हमको अल्लाह तक लेकर जाए, अल्लाह से नज़दीक करे। ऐसे रास्ते को चुनना चाहिए। जो शख्स इस बात को समझ लेगा कि मुझे आखिरत तक पहुंचना है, तो वो कभी भी दुनिया की लज्जतों में घिरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसको अबदी खुशी अता नहीं करता है, बल्कि वो ऐसी लज्जतों को चुनेगा जो आखिरत की लज्जतों के हासिल करने का सबब बने। यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही बुनियादी और असासी बातें करना चाह रहा हूँ अजीज़ों। अब आप मैदान अमल में आ गए, सफ़र अब आपका आगाज़ हो रहा है मसीर कमाल पर। अब सफ़र का आगाज़ है, अब थ्योरी की बात नहीं है। आपने इरादा कर लिया, अब जो अपने सफ़र पर चलना चाह रहे हैं। सफ़र पर चलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस्म की तैयारी की ज़रूरत है? उनमें से सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है हज़रत, वो है प्रोग्रामिंग। कि अगर आपको सब पता भी चल जाए कि किन किन रास्तों से मैं अल्लाह से नज़दीक होता हूँ, लेकिन अगर आप उसके लिए सही प्रोग्रामिंग ना करें और उससे फ़ायदा ना उठाएं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे पहले जो किताबें थी, उन किताबों में इंसान को महारतें सिखाई गई थी कि आप अपनी ज़िंदगी में किन किन महारतों को हासिल करें और उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते। दौलत है तो दौलत खर्च करने की एक महारत आपको आना चाहिए। घर ज़िंदगी आपने बनाई है तो घर ज़िंदगी चलाने के लिए तदबीर मंजिल जिसे कहा जाता है, तो घर ज़िंदगी चलाने की आपको एक महारत होनी चाहिए। ठीक है, आपने मुतालिया का इरादा किया तो मुतालिया में कैसे करूं और अपने वक्त को कैसे बांटूं, तो वक्त को मैनेजमेंट, वक्त को इस्तेमाल करने की आपके अंदर महारत होनी चाहिए। इन महारतों का जिक्र पहले आ चुका। अब उसके बाद ये कि जब आप महारतें सीख चुके तो अब इसको अप्लाई करिए। उसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो ये पहली किताबों में आ चुकी। चूँकि हम आगे की किताब पढ़ रहे हैं तो मैं उन चीज़ों को दोहरा नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी मौका मिले तो उसका खुलासा आपके सामने पेश करूँगा। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि जब हम नौजवान बच्चों को बुलाते हैं दीन की तरफ, तो अक्सर ये समझते हैं, और हमारी दीनी किताबों की कमज़ोरी में बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप याद रखें कि हम बच्चों को दीन की तरफ बुलाना चाह रहे हैं। हमारी दीनी किताबें उठा कर देखिए, हमारी दीनी किताबें में कुछ चीज़ों को रटाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है, रोज़े सिखाए जाते हैं, और इसे समझते हैं कि हमने बच्चे को दीन सिखा दिया। वो बच्चे को अट्रैक्ट नहीं करता, वो काफ़ी नहीं होता। नमाज रोज़ा सिखा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये बात बताने की ज़रूरत है कि तुम दीन के चार चौक में, दीन के दायरे में अपनी ज़िंदगी को कैसे, अपनी ज़िंदगी के लिए कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये सिखाया। किस एज से तुम्हें अमल अंजाम देना है, किस एज से तुम्हें काम करना है, काम करने में दीन के कौन से कानून को नज़र में रखना है, और तुमको कौन सा काम कहाँ से शुरू करना है, इसकी प्रोग्रामिंग करके देने की ज़रूरत है। ये प्रोग्रामिंग अगर करके नहीं देंगे और उसको चंद नसीहतें सुनाकर कहेंगे कि ये दीन है, अब इसके ऊपर तुम चलो, तो वो नौजवान नहीं चल पाएगा। और उसकी सबसे बेहतर मिसाल मैं हूँ, आप। हमने भी शुरू से अल्लाह एक, पंजतन पाँच, इमाम 12, नमाज रोज़ा सीख लिया, मगर हमारी ज़िंदगी में दीन कितना हाकिम है, हम कितना उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने हमको गाइड नहीं किया, किसी ने हमको बताया नहीं है। शादी के बाद लोग गुस्ल के अहकाम सीखते हैं, शादी के बाद पूछते हैं कि हमको अब हमारी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चलाना चाहिए। ये बात तो पहले सीखने की ज़रूरत थी, और अभी 1 साल 1.5 साल नहीं हुआ कि बच्चा हो गया। अब उसके बाद उनको उसकी फिक्र हो गई कि इस बच्चे की तरबियत कैसे की जाए, जिसने खुद किसी उस्ताद के पास सही ढंग से नहीं पढ़ा, अब वो अपने बच्चे के लिए किसी मौलवी की तलाश करता है कि कोई इसको पढ़ा दे। तो ये बड़ा झोल है।
यहाँ पर हमारे को, और ये अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब मैं भी 45 साल का हो गया हूँ, आप 30-35 के कोई होंगे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आगे की ज़िंदगी की प्रोग्रामिंग करके हम अपने आप को बेहतर बना लें, क्योंकि ये मसीर कमाल तो आखिरी मरते दम तक अपने को तय करना है, ठीक है। बाद लोग ये कहते हैं कि अब तो उम्र गुजर गई, अच्छे थे तो अच्छे थे, बुरे थे तो बुरे थे, अब जो कुछ सोचना है बच्चों के बारे में सोचना है। ये क्या बात हुई भाई? अभी आपकी ज़िंदगी बाकी है, आपको अभी भी जैसे अपने ये काम करना है। अच्छी बात, एक सलवात पढ़िए मुहम्मद वाले मुहम्मद। लोग नौजवान बच्चे दीन से क्यों भागते हैं? दीन से इसलिए भागते हैं जब आप उसको बताते हैं ये वाजिबात है और ये मुहर्रमात है, यानी रोकना और टोकना। बच्चा जब जवान हो जाता है 14 साल का, तो उसकी अपनी खुद एक राय होती है ज़िंदगी के बारे में, और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता है। तो यहाँ पर आप इस बच्चे को रोकते और टोकते हैं तो उसको लगता है कि आप उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को दबा रहे हैं और उसकी आज़ादी को छीन रहे हैं। और कोई भी ग़ुलामी पसंद नहीं करता, इसीलिए रोक टोक बर्दाश्त नहीं करता है। हम जो क़ानून को मानते हैं बाहर, वो भी डंडे के ज़ोर पे मानते हैं कि अगर हमने ट्रैफिक के रूल अगर नहीं अपनाए तो चालान हो जाएगा, या किसी को कत्ल कर दिया तो जेल में चले जाएंगे। वो कत्ल से नहीं डरता है, जेल से डरता है, ठीक है। तो उसको कत्ल की बुराई का एहसास नहीं है, बल्कि उसको जैसे अपने सज़ा का खौफ है। लेकिन जब तक हम सज़ा का खौफ देकर किसी को बुलाएंगे दीन की तरफ, वो दीन कभी भी हाकिम नहीं हो पाएगा, वो क़ानून कभी भी अप्लाई नहीं हो पाएगा जब तक ईमान की बुनियाद पर या इस क़ानून के फ़ायदे की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होगी। इसीलिए अहकाम से ज़्यादा फ़लसफ़े अहकाम समझाने की ज़रूरत है, नमाज के फ़ायदे बताने की ज़रूरत है। यकीनन अल्लाह का हुक्म है, मानना है, मगर साथ में उस हुक्म का फ़ायदा भी तो है, इसलिए कि अल्लाह हकीम है, बेमकसद तो हुक्म नहीं देगा। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना, उसकी हिकमत पे भरोसा रखना, उसकी बनाई हुई शरीयत के ऊपर भरोसा रखना, तो वो ईमान जैसे अपने आप को और वो फ़ायदा आपको मजबूर करेगा उस पर अमल करने के लिए। वरना हम सिर्फ और सिर्फ समाज में बदनाम ना हो, चूँकि हमने एक मेयार बना लिया, फ़लाँ साहब फ़लाँ काम करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, तो हम वो बदनाम होने से बचने के लिए वो काम नहीं करते। लेकिन अगर हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए किसी ऐसे माहौल में कि जहाँ पर इन बातों को बुरा नहीं समझा जाता, तो हम वो काम पहले अंजाम देते। जो यहाँ पर मासूम बने फिरते हैं वो दुबई में कुछ और करते नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ उनके लिए आज़ादी है, वहाँ उनके लिए आज़ादी है। तो आदमी ये आज़ादी चाहता है, निकलना चाहता है ऐसे काम करने के लिए। तो इसका मतलब है आपको बुराई का एहसास नहीं है, आप तो इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आप ऐसे माहौल में, ठीक है, क्योंकि ऐसे माहौल, ये बहुत बुरी बात है। मगर यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो बिल्कुल जवान हैं, उनके लिए जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि इंसान सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को समझे कि अपनी ज़िंदगी अहम है और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसको दोबारा तजुर्बा नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हान व तआला इस ज़िंदगी के बारे में ये कह रहा है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है, घाटे में। अगर उसने ज़िंदगी को सही नहीं बरता तो वो क्या है, खसारे में, घाटे में। अब अगर जिसने अपनी ज़िंदगी को अहमियत दी, अहम समझा, तो वो ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करेगा, क्योंकि दोबारा मिलने वाली तो है नहीं, वो प्रोग्रामिंग करेगा। और वो प्रोग्रामिंग क्या है, आपने ये इरादा किया कि मैं मुतालिया करूँगा, या आपने ये इरादा किया कि मैं वर्जिश करूँगा, जिम जाऊँगा। जब आप जिम जाने का इरादा करते हैं या पढ़ने का इरादा करते हैं, तो आप अपने वक्त को तंजीम करते हैं, आप किताब को चुनते हैं, मुताले का एक वक्त चुनते हैं, उस वक्त कोई और काम नहीं करते और इस काम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते ताकि वो नतीजा हासिल हो। जब आप अपनी ज़िंदगी में या कोई जॉब कर रहे हैं, आपको उस वक्त में मजलिस रख दूँ तो आप नहीं आएंगे, कोई दावत रख दूँ तो नहीं आएंगे, आप अपने घर नहीं जाते हैं, रिश्तेदारों में कोई मरीज़ हो जाए तो आप अयादत के लिए नहीं जाते, कहते हैं कि मेरा जॉब है। बड़े से बड़े काम को छोड़ते हैं क्योंकि आपके लिए जॉब आपकी ज़िंदगी के लिए अहम है, या आपके रोज़ी रोटी का ज़रिया है, या आपकी ज़िंदगी का अहम पहलू है।
तो उसके लिए आप कैसी प्रोग्रामिंग करते हैं? हर बात के लिए जॉब। संडे क्लास क्यों रखी गई? इस दिन छुट्टी है। इसको शाम में क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो तो अपनी मेरी मीटिंग है इस टाइम पर। तो आप हर चीज़ को बदलते हैं अपनी जॉब के खातिर। तो अजीज़ों, जब इतनी प्रोग्रामिंग आप अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे काम के लिए करते तो ये मुकम्मल ज़िंदगी की बात है। इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोग्रामिंग का नाम है वाजिबात और मुहारमात। इसी प्रोग्रामिंग का नाम है, यानी अल्लाह ने इसको प्रोग्रामिंग करके दी है कि ये काम करो, ये मत करो। इससे क्या होगा? तुम्हारी ज़िंदगी सुधरेगी। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। बस अगर आपके जहन में ये बात आ गई अजीज़ों कि ज़िंदगी के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अब प्रोग्रामिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? 4 चीज़ें ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। आज सिर्फ 2 चीज़ें बयान करूँगा, इससे पहले कि हसन साहब सो जाए। 2 चीज़ें बयान करूँगा, ठीक है? और बाकी बात इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते होगी। एक बड़े मकसद तक पहुंचने के लिए हमको अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, और ताकि हम सही नतीजा अपनी ज़िंदगी का हासिल कर सकें और ऐसे रास्ते पे न निकल जाएं जो हमें क़यामत दोज़ख के करीब करे। उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले ये जानें कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ के सीधा आपको नमाज रोज़ा समझाता, ये ज़्यादा कोई काम की बात नहीं थी। उतना तो आप तौज़ील मसाइल भी पढ़ लेते, ज़रूरत के वक्त जो चीज़ जानना है जान लेते। असल चीज़ तो ये सीखने की ज़रूरत है कि मैं अपने लिए क्या प्रोग्रामिंग करूँ और कैसे उसको अंजाम दूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोग्रामिंग के लिए है वो ये है कि इंसान पक्का इरादा करे। इरादा सबसे पहली चीज़ है। अज़्म कहते हैं इरादा, किसी भी काम को अंजाम देने का फैसला करना। इंसान जिस चीज़ को चुनता है उसको अंजाम देने की कोशिश करता है। जिसको अहम समझता है उसको अंजाम देने की कोशिश करता है। अब ये और बात है कि हर किसी का इरादा ज़रा फ़र्क करता है। कोई अपने इरादे में बहुत मजबूत है, कोई अपने इरादे में कमज़ोर है। लेकिन जब तक इंसान इरादा नहीं करेगा किसी काम करने का, तब तक वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इरादे के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इरादे के लिए ज़रूरत है कि इंसान के अंदर तहम्मुल, पैशन, सब्र और डट जाए, सख्तियों का मुकाबला करने के का पक्का इरादा कर ले। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, और ख़ुसूसन अभी इन दिनों में जो हम करबला से नज़दीक हैं, ये बात सोचने के लिए इमाम ने एक इरादा किया कि मैं अल्लाह के दीन को हाकिम करूँगा और रसूल खुदा की शरीयत के ऊपर चलूँगा, उम्मत मोहम्मदी की इस्लाह करूँगा, लोगों के दरमियान अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करूँगा। अब जब इमाम ने ये इरादा किया तो एक फ़ैसला था आपका, या ये आपने इरादा किया कि मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। यह आपका फ़ैसला है। अब आप इस फैसले के ऊपर बाकी रहना आसान बात नहीं थी। इसके अंदर आपकी जान भी जा सकती है, माल भी छीन सकता है, औलाद भी कुर्बान हो सकती है। तो क्या फिर भी आप ये काम करेंगे? जी हाँ, मैं करूँगा। ये है मजबूत इरादा। ठीक है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि मैं दुश्मन जो जुल्म करेगा उस जुल्म को कबूल करूँगा, इसका नाम सब्र नहीं। सब्र का नाम ये है कि मैं दुश्मन से मुकाबला करूँगा। तो इसमें सब्र कहाँ दिखाई दिया? ये तो एक्शन हुआ। सब्र इसमें यह है कि इस मुकाबले के रास्ते में जो तकलीफ़ें मुझे आएंगी, उन तकलीफ़ों की वजह से पीछे नहीं हटूंगा। तलवार लेके निकलेंगे मैदान जंग में, ज़ख्म भी आएंगे, हाथ भी कटेगा, आँख भी फूटेगी, जान भी जाएगी।
تو یہ جو تکلیفیں آپ کو مل رہی ہیں، کیا ان تکلیفوں کو برداشت کریں گے اپنے مقصد کے لیے؟ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے ارادے کا نام صبر ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ برداشت نہیں کریں گے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ رسول کا دین حاکم ہے۔ کیا امام اپنے مقصد تک پہنچے؟ حقیقتاً دیکھا جائے ہم جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نہیں پہنچا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ کوئی بھی یزید کے بعد کوئی بھی حاکم مسلمان خلیفہ ہونے کے نام پر دین کو بدل نہیں سکا، اور اگر اس کے بعد کوئی دین پر چلنا چاہے تو اس کے لیے خالص دین موجود ہے۔ یہ امام کا کام ہے۔ بلکہ وہاں تک کیا جائیے، جو کام دین نے بیان کیے وہ ہماری توضیح المسائل میں تہذیب الاسلام میں موجود ہے۔ جو ٹریڈیشن ہم نے اپنایا وہ ابھی تک دین کا حصہ نہیں بن سکا۔ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں، چاہے وہ نظر دینے کے طریقے ہو، چاہے وہ مجلس کرنے کے طریقے ہو، علم بٹھانے کے طریقے ہو، کھانا کھلانے کے طریقے ہو، یہ سب چیزیں آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں۔ اسی لیے اس کے کوئی احکام نہیں ہے۔ کوئی مجھے بتا دے علم بٹھانے کا طریقہ، علم بٹھانے کے آداب تہذیب الاسلام میں سے دکھا دے، توضیح المسائل میں سے دکھا دے۔ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹریڈیشن کا حصہ ہے۔ کوئی خونی ماتم کرنے کے آداب اب تک بتا دے۔ آپ تو ناخن کاٹنے کے بھی آداب دیکھتے ہیں نا، میت دفنانے کے آداب دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے سورس کیا چنتے ہیں؟ دینی کتابیں جا کر دیکھتے ہیں نا۔ ان اعمال کو جا کر ذرا ٹٹولیے، کہاں پر ہے یہ؟ تو آپ کو کہاں ملتے ہیں اس کے آداب؟ اچھا کیا یہ غلط ہے؟ تو یہ میں نے نہیں کہا کہ کوئی بھی آپ کام کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ ممکن ہے مستحب نہ ہو، ممکن ہے حرام نہ ہو، ممکن ہے واجب نہ ہو، وہ تو مباح ہے، ٹھیک ہے، مباح ہے۔ لیکن اگر مستحب ہوتا، اگر واجب ہوتا تو اس کے احکام بھی باضابطہ آتے۔ احکام نہیں ہے، میں تو یہ تو یوٹیوب پہ بھی جائے گی، کوئی بھی پکڑے گا، یہ حساس باتیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ کمال در حقیقت امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کی وجہ سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی خلیفہ، کوئی بھی شیعہ دین میں دین کے نام پر کسی بات کو داخل کر کے اسے دین نہیں کہہ سکا۔ کیونکہ جب ہم ٹٹول کر اپنے سورس کو دیکھتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو، وہاں چیزیں یہ نہیں ملتی۔ ہاں یہ ہے کہ سینہ بہ سینہ ہمارے بزرگوں کے ذریعے یا پھر ہمارے لوگوں کے ذریعے وہ ہمارے ذہن میں ڈالا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی دین ہے۔ مگر جب آپ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک مجتہد بھی سنبھلا ہوا رہتا ہے، ایک عالم دین بھی سنبھلا ہوا رہتا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کہوں۔ ہم کسی چیز کے نہ مخالف ہے، نہ کسی چیز کے موافق ہیں۔ ہم مجبور ہیں دلیلوں کے۔ دلیل اگر نہیں ملی، آپ ہمیں لاکھوں روپیہ بھی دے دیے تو ہم کسی غلط چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتے، کسی صحیح چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو عزیزو، مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ مضبوط ارادے کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سخت سے سخت حالات پیدا ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، آپ پل بھر نہ ہٹیں۔ اگر صدر اسلام کے صحابہ ڈٹ کر مولا متقیان اور رسول خدا کے ساتھ دشمنوں سے جنگ نہ کرتے تو کیا اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ حضرت علی کے ساتھ ساتھ وہ صحابی بھی قابل احترام ہے، جس کو ہماری سوسائٹی میں کمرنگ کیا جاتا ہے۔ کتنا صحابیوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا اکیلے حضرت علی نے یہ سب کام کیا ہے؟ یہ صحابی نہیں تھے تو ان کی بھی بڑی خدمتیں تھیں، ان کو ہم کیوں زندہ نہیں کرتے؟ ہم نے ہر چیز کو بانٹ کیوں لیا؟ قرآن سنی لے لیں، صحابہ کو سنی لے لیں، ہم اہل بیت کو لے لیں۔ یہ تو نہیں ہوا نا۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ امام کے بعد صحابی آئیڈیل ہے، صحابی کے بعد کون ہے؟ علماء آئیڈیل ہے۔ اگر ہم ان کو بیچ میں سے نکال دیں گے کڑیوں کو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو امام کے فیصلوں پر، رسول خدا کی تعلیمات پر چلنے کا کسی نے سلیقہ سکھایا تو وہ صحابی۔
उन सहाबियों को एहतराम से अइम्मा याद करते हैं, उन सहाबियों का हम जिक्र करते हैं ज़ियारतनामों में, उन सहाबियों पर हम सलाम भेजते हैं। जब तक हम इनको नहीं देखेंगे, सिर्फ मासूम की सीरत देखेंगे तो 1000 बार बहाने लाएंगे आप, वो तो मासूम थे। लेकिन जब तक हम सहाबियों को नहीं पढ़ेंगे, उलमा को नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए जब अपने वो किरदार खिलकर और खुलकर नहीं आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब लुक़मान हकीम अपने बेटे से कहते हैं कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस सलाता, नमाज कायम करो, व अमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ करो व नहीं अनिल मुनकर करो, वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अस्बिल उमूर, और उन मसाइब के मुकाबले में जो तुम्हें पहुँचते हैं इस्तिकामत दिखाओ और साबिर बनो, क्योंकि ऐसे कामों में मजबूत इरादे की ज़रूरत है। ये मजबूत इरादों में से, ये बुनियादी कामों में से। उलील अज़्म पैगम्बर इसलिए कहते हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी और उन्होंने बड़े मसाइब झेले। और रसूल खुदा तो ये कहते हैं कि तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा अज़ियत जितनी मुझे दी गई है, उतनी अज़ियत किसी और नबी को नहीं दी गई है। मगर रसूल खुदा ज़र्रा बराबर नहीं हटे। जनाब अबू तालिब के पास आए लोग, आकर कहने लगे कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को दौलत की ज़रूरत है तो हम मालो दौलत देने की ज़रूरत तैयार है। अगर उन्हें कबीले की सरदारी चाहिए तो हम उन्हें सरदारी देने के लिए तैयार हैं, और अरब की बेहतरीन खूबसूरत लड़की से उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। फ़कत उनसे कहिए कि हमारे दीन के ख़िलाफ़ न बोले, हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहें, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो रसूल खुदा ने, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है अबू तालिब, तो हम आपको एक मशवरा देते हैं, वो ये है कि हम आपके जवान को कत्ल करेंगे, उसके बदले हमारी तरफ से आपको एक जवान देंगे जिसको आप पालिए पड़े अपना बेटा बना लीजिए। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि बड़ा अजब फैसला किया कि मैं अपना लख्ते जिगर तुम्हें दे दूँ कि जिसे तुम मार दो, और तुम दुश्मनों के लख्ते जिगर को, तुम दुश्मनों के शख्स को मैं परवरिश करूँ। ये कैसा गैर मुनसिफाना। लेकिन फिर भी वो सारा पैगाम लाकर आप रसूल खुदा को सुना देते हैं कि ये लोग ये चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम दौलत से नहीं माने, खौफ से नहीं माने, लालच से नहीं माने, तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब आप क्या कहते हैं? तो आपने कहा मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद दे दिया जाए तो मैं अपने मौक़िफ़ से ज़र्रा बराबर पीछे नहीं हटूँगा। कितना है मैं अभी तो जनाब मीसम तखय्या कर सकते थे, मगर जनाब मीसम चूँकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खासुल ख़ास सहाबी थे, और अगर वो हज़रत अली के ख़िलाफ़ सबको शितम करते तो वो तारीख़ का हिस्सा बन जाता। इसीलिए आपने अपनी जान दे दी, लेकिन मौला के ख़िलाफ़ नहीं गए। सोचने वाले के लिए है कि जब ज़बान कट रही हो, आज़ाए बदन कट रहे हों, उसके बाद मोहब्बत के ऊपर क़ायम रहना कितना वो इस्तिक़ामत उन्होंने दिखाई। हुज्र बिन नदी को कैसे कत्ल किया गया, यहाँ तक कि उनकी कब्र को तक नहीं छोड़ा गया, उनके हाल में तक उनकी कब्र को खोद कर उनके लाश को निकाला गया। तो ये सब जो अपने सब्र के मजबूत सुतून है, अगर ये लोग ना होते, हबीब इब्न मज़ाहिर ना होते, ज़ुहैर बिन खैल ना होते, जनाब क़ासिम ना होते, खुद इमाम हुसैन का सब्र आप देखिए किस तरीके का सब्र इमाम ने दिखाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है सब्र। अब मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है, यहीं पे दर्स को ख़त्म कर देता हूँ, इसी से आपसे नताइज लेकर बात को ख़त्म करते हैं। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे मैं दूंगा मतलब तो बात नहीं बनेगी, ये आपसे पूछना है, ठीक है? गौर से बताइएगा कि वो इंसान जो मजबूत इरादे वाले हैं और वो अफराद जो इरादे में कमज़ोर हैं, अगर इन दोनों को आप टैली करेंगे तो उनके अंदर आपको क्या क्या फ़र्क दिखाई देगा। अभी अपनी सोसाइटी में कमज़ोर इरादे वाले सोसाइटी को किधर ले जा रहे हैं, मजबूत इरादे वाले सोसाइटी को किधर ले जा रहे हैं, और क्या क्या फेस कर रहे हैं। कमज़ोर इरादे वाले कहाँ कहाँ आकर झोल खाते हैं, किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं रहती, मगर मकाम मर्तबे की लालच होती है।
वो वहाँ के ढीला पड़ जाता है। कोई पैसे में ही खुश हो जाता है, कोई सख्तियाँ झेलने के बाद कमज़ोर पड़ जाता है, मार वार पड़ती है तो वहाँ पर डगे डाल देता है। तो हर किसी का जो अपने इरादे कमज़ोर होने के भी एक मेयार आते हैं, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, वो ज़रा मुझे आप बताइए। कमज़ोर इरादे वाले कैसे होते हैं, मजबूत इरादे वाले कैसे होते हैं? 2 कॉलम बनाइए, इनकी खूबियाँ दिखाइए, उनकी खूबियाँ दिखाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। आज के दर्स को हम यहीं पे इंशाल्लाह खत्म।